Good afternoon, students. Now we are starting with the fourth part of NTSC. This is the last part of an NTSC video. Okay. So, in a last time we are doing this question. Find the value of cube root of 6th root of a raised to 9 raised to 4 multiply by 6th root of cube root of a raised to 9 raised to 4. So हम लोगों ने उसमें कैसे किया था कि हम लोगों ने बहुत जल्दी में किया था और थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था. तो लेट मी डू इट इन अ प्रॉपर वे. अभी मैं आपको अच्छे से समझा के बताती हूँ कि कैसे करना है और शॉर्टकट में कैसे करना है. दोनों मेथड में बताती हूँ. तो प्रॉपर वे कैसे रहेगा इसका. तो सॉल्यूशन Today is the last lecture. Today we will finish our NTSC. So you can prepare it for your test when I'll conduct this chapter on offline. See, when there is a raised to 9, सबसे अंदर का देखो ये a raised to 9 है. एक एक करके चलेंगे हम लोग. 6th root of a raised to 9. We will first solve this part. 6 raised to a raised to 9 means what? A raised to 9 multiply by 1 by 6. Okay, before this let me tell you one thing. What is the meaning of root 2? root 2 का meaning क्या रहता है? स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको. तो it will be the 2 raised to half. Cube root of 2, it will be the 2 raised to 1 by 3. 5th root of 9, it will be 9 raised to 1 by 5. It means what I am doing, whatever the number is given in that root, we are giving 1 upon 5, 1 upon 5th part of this 9. 9th is the 9th raised to power 1/5, 2 raised to power 1/3, 2 raised to power मतलब ये जो नंबर है that will be your power in a upon. ठीक है. तो similarly here I have 9, 6 है तो I am going to write is 1 upon 6 like 2 raised to 1 by 6. It should be like this, a raised to 9 into 1 by 6. Now 3 3s are 9, 3 2s are 6. So it will be a raised to 3 by 2. ठीक है. a raised to 3 by 2. What is this? ये किसका सॉल्यूशन हुआ? a raised to 3 by 2 इसका आया. बराबर है ना. This is all the solved example. ये थोड़ा a raised to 3 by 2 is the solution for this one. तो यानी कि इसके जगह मैं अभी क्या लिखने वाली हूँ? a raised to 3 by 2. So cube root of a raised to 3 by 2. अभी फिर से क्यूब रूट है. How we will do? a raised to 3 by 2 into yes 1 by 3. तो ये गया और ये भी गया. कितना बचा अपने पास में? What we are remaining with? a raised to 1 by 2. Now you can see this whole raised to 4 is given to you. See, whole raised to 4. ये देखो. So let me write here whole raised to 4. Again what it will be? It will be a raised to 4 divided by 2 which is equal to a square. So what is the result of this? What is the result of this one? इसका पूरा रिजल्ट कितना आया मेरे पास में? a square आया हुआ है. बराबर है. इसका पूरा रिजल्ट a square आया. अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. हाँ, नेक्स्ट पार्ट. अगेन वी हैव द सेम. यस यू कैन सी द सेम इज देयर ना. 6 सिर्फ अलग अलग करके दिया है. यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर चेंज किया है. जहाँ पे 3 था वहाँ पे 6 किया है. जहाँ पे 6 है वहाँ पे 3 क्या हुआ. ठीक है. इंटरचेंज द ऑर्डर. तो लेट अस सॉल्व दिस वन आल्सो. तो हाउ इट विल बी?
6 रूट ऑफ, ओके सॉरी यहाँ पे लिखना है ना, 6 रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ a raised to 9 and again it is a whole power 4. फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. लेट मी डू इट डायरेक्टली. 6 रूट ऑफ a raised to 9 by 3. So what will happen? 3 3s are 9. So it will be 6 root a cube. अब इसको फिर से क्या करेंगे हम लोग? a क्यूब इंटू 1 बाय 6. ये हुआ मेरा 3 2s are 6. कितना आया अपने पास में? a रेज टू हाफ और ये टोटल रेज टू कितना है? 4 है, यानी कि a 4 बाई 2. सो a इज इक्वल टू 2. पहले का ये 2 और ये 2 और बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लिकेशन का है. सो आई विल गेट द रिजल्ट a2 इंटू a2 and you know that if bases are same exponent get added, that is a 2 plus 2. So your option is a raised to 4. So here options are given student. Number 1 a raised to 16, a raised to 12, a raised to 8 and fourth one is a raised to 4. So this is your correct option. Now what I told you is the proper way, सिस्टमेटिक वे कि हमें कैसे सॉल्व करते हैं. बट व्हेन वी विल डू फॉर द कंपटीशन एग्जाम, नो नीड टू सॉल्व सच अ लॉन्ग मेथड. डायरेक्टली यू कैन डू. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सी स्टूडेंट, सी दिस 3 and 6, 3 और 6 क्या है? दिस आर द ऑर्डर्स. दिस 3 and दिस 6 इज एन ऑर्डर. और ये 9 और ये 4 क्या है? पावर है. ठीक है ना? these are the order and these are the power. So always remember, order should be in the new denominator and power should be in a numerator. So how to do this one? So it will be like this, direct, short trick और shortcut. क्या था अपने पास में? A. ऑर्डर क्या क्या है? व्हाट आई टोल्ड यू. पावर क्या क्या है? पावर थे मेरे पास में 9 और 4. 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करो और ऑर्डर कितना था? 3 और 6. हो गया ख़त्म. इनटू सेम यू हैव टू डू. ऑर्डर इज 9 and 4 and order is again 3 and 6. So what you will get? 36 upon 18 into a raised to 36 upon 18. 18 2s are 36, 18 2s are 36. A raised to 4 is the option. So I told you by both the methods, so you can practice it like this. तो ये तो लास्ट टाइम का सम था जो अपना अधूरा रह गया था, उसको मैंने अभी डिटेल में बताया क्योंकि उस टाइम पे मेरे ख्याल से ठीक से नहीं हो पाया था लास्ट वीडियो में. सो यू कैन सी हियर एंड सॉल्व इट अगेन विद द प्रॉपर वे. चलो आज के हमारे टाइप टॉपिक पे जाते हैं. तो आज का अपना टॉपिक है कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ डिवीजन, हम लोगों ने एक स्क्वायर रूट ऑफ एडिशन किया था, है ना. You can see the video. Square root of addition we have done, square root of multiplication we have done, square root of subtraction we have done. Now नहीं, let us take one more example of this type. एक और एक example ले लेते हैं इस type का. After that I will take that one. So question number 2. It is 4th root of, again square root is there. Square root 4th root again cube root of x cube and this is all raised to 4. देखो कितना अभी जब देखे तो ऐसा लग रहा है कि हाउ मच कॉम्प्लिकेटेड इट विल बी, बट इट इज़ वेरी सिंपल. व्हाट आई टोल्ड यू द ट्रिक. पहले नंबर लिख लो. पावर कितना है? देखो ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो पावर को ऊपर लिख लो. जो ऊपर है उसको ऊपर लिख लो. नीचे कौन है? अंदर में कौन है? 4 3. ये 4 और 3 गया 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 गया. कितना बचा? योर रिजल्ट इज x ओनली. सॉरी, हाँ सी स्टूडेंट्स, वन मिस्टेक आई डिड कि 4 3 तो लिया, बट सी दिस इज ऑल्सो देयर ना, स्क्वायर रूट है ना, दिस स्क्वायर रूट इज ऑल्सो देयर, सो इट शुड बी द 2 ऑल्सो.
So x raised to 1 by 2. X raised to 1 by 2 is nothing but root x. So your option is root x. So these are the two examples which I have taken, in which whenever the so many square roots, so many roots are there, then what to do? Keep the original number as it is and powers on your numerator and orders in the denominator. In this way you have to solve these sums. चलो आज के टॉपिक पे शुरुआत करते हैं. दिस इज ऑल ऑन द लास्ट वीडियोज. अभी डिवीजन ऑफ अ स्क्वायर रूट. डिवीजन रहेगा तो कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 8 divided by square root of 8 divided by square root of 8 divided by up to infinity. हम लोगों ने देखो वी हैव स्टडीड, यहाँ पे प्लस था, प्लस प्लस वाले किए, यहाँ पे माइनस माइनस वाले किए. लास्ट वीडियोज़ में यू कैन सी यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाले किए. नाउ डिवीजन इज रिमेनिंग. तो डिवीजन के ऊपर अभी हम लोग फोकस करेंगे. x इज इक्वल टू, सी स्टूडेंट, दिस इज रूट एट. x is equal to what? Root 8x divided by root x, 8 divided by root x divided by 8. Now this whole term, पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं. पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड. व्हेन आई डू दिस स्क्वायर ना, योर फर्स्ट दिस स्क्वायर रूट विल एलिमिनेट. इसका ऊपर का भाग निकल जाएगा, ये उड़ गई इसका स्क्वायर रूट. एंड व्हाट आई एम रिमेनिंग विद द ये वाला 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय square root of 8 divided by up to infinity. Now students, you can see this whole term, देखो, and this term is same or not? देखो, root 8 divided by divided. But what is this? This is x or not? So I will put here x square is equal to 8 divided by x, because this whole term is x only. Now it will be the x square is equal to 8 upon x. Do the cross multiplication. x cube is equal to 8. Now tell me student, what is the cube of 8? 8 का cube क्या रहता है? You know very well. x cube is equal to 2 cube. So your result is x is equal to 2. This is the solution. Okay. Let us take one more example. Today I will take 7 or 8 examples and we will wind up our number system. And from the next time I am going to start with the next topic. Let us see which topic will be there. Okay, again x is equal to 2 divided by 2 divided by up to infinity. Again do the squaring both the side. X square 2 divided by 2 divided by up to infinity. Now again you see this term and this is very same or equal, you can say that. तो इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x रहेगी. तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? x square is equal to 2 divided by x, that is x square is equal to 2 upon x. So cross multiplication x cube is equal to 2. Now students, वहाँ पे 8 था लास्ट समय, तो you can easily take out the cube root on both the side, but here it is 2. So how to do this one? Whenever there is cube, if we want to eliminate the cube, we have to take the cube root on both the side. If square is there, if you want to do the eliminate the square, you have to take the square root. अभी यहाँ पे क्यूब है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूब को एलिमिनेट करना है तो मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा. तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? टेकिंग स्क्वायर रूट या क्यूब रूट. अब ये क्यूब रूट की बात हो रही है तो वी विल टेक द क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. बी एस फॉर बोथ साइड. तो क्यूब रूट का लेने का मतलब क्या है? क्यूब है और क्यूब रूट मतलब कि वहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो. बिकॉज सी इफ दिस इज क्यूब रूट ओनली, तो इसको हम लोग क्या करते थे? I used to write like this or not? Cube root का मतलब 1/3, fifth root का मतलब 1/5. So I told you students this is so many times, so remember this one. तो ये 3 गया और यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा. क्यूब रूट लिया तो ये हो गया 2/3. तो x का आंसर कितना आ जाता है? ये क्यूब रूट ऑफ 2.
In this way, here this sum is also over. I hope you are getting very well. Chalo, so division is also over. Now let us start one more questions. How many sums are there? Okay. Now, in a chapter, there is a chapter in a 10th standard AP. We will study it later. तो उसमें क्या है कि सम ऑफ द गिवन टर्म्स और टर्म्स इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले. तो अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक टर्म बताती हूँ कि बाबा इफ़ वी आर एडिंग द टर्म्स ऑफ अ नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + अप टू कितना भी ले लो n टर्म्स रहेगा, तो इसको डायरेक्ट हम लोग n + 1 अपॉन 2 कर सकते हैं. देखो अभी आप लोग ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. ऐड इट. इसको ऐड करेंगे तो मे बी यू विल गेट 55 और 56 सब कुछ तो मिलेगा ऐसे. अभी मैंने रैंडमली मेरे को याद है इसलिए मैंने लिख ली है, पर इस फॉर्मूले से देखो तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट डाल देते हैं. n मतलब कि लास्ट वाला नंबर, तो 10 × 10 + 1 कितना होता है अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10 × 11/2. तो 2 5 11 5 55 हुआ कि नहीं 55. नहीं तो आप ऐड करते बैठे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55. तो ये तो ठीक है 10 तक है इसलिए ओके. बट अगर यहाँ पे 1000 रहेगा या 5000 रहेगा या कुछ बड़ी बड़ी टर्म्स रहेंगी तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला ओनली. ठीक है, दैट इज सम ऑफ द n टर्म्स. तो दिस इज द सम ऑफ n terms. Remember this formula. Now next question. Next question is that if a is equal to 2 + √5 and b is equal to 2 - √5, find the value of वन अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी. ठीक है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी. देखो अभी यहाँ पे ए है मेरे पास में 2 + 5. तो 1 अपॉन ए कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 2 + 5. ठीक है, अभी बी है, बी कितना है मेरे पास में 2 - √5. तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 - √5. ठीक है, दिस इज 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी. अभी 1 अपॉन ए को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, आई टोल्ड यू कि वेन एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व द 1 अपॉन 2 √5 का अगर हम लोग रैशनलाइज करते हैं तो 1 अपॉन ए कितना आएगा. याद है बच्चों आप लोगों को ए मैंने 1 अपॉन 2 √5 लिखा है, तो 1 अपॉन ए को मैं क्या बताती थी आप लोगों को, उसका कॉन्जुगेट लिख दो आप. यहाँ पे इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है. एंड दिस इज एंड 1 अपॉन ए कितना था 2 √5, पर मैंने उसको दूसरी मेथड से क्या बताया था, इसको रैशनलाइज करते थे हम लोग, और 1 अपॉन ए इज डायरेक्टली 2 अपॉन 5. दिस इज अ लेंथी मेथड. अभी इसको मैं क्या करने वाली थी, सपोज आप लोगों को अगर ये मैंने सिखाया नहीं रहता, हाँ लिसन स्टूडेंट, इफ़ आई वुड नॉट हैव टॉट यू दिस वन, अगर मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं होता तो हम लोग क्या करते थे 1 अपॉन ए, ये ए है ना, ये 1 अपॉन 2 √5 है ना, तो इसको मैं क्या करती थी रैशनलाइज करती थी 2 - √5. एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि 2 - √5 और ये कितना है 2 2 4 -5, 4 - 5 कितना जाता है -1, तो ये होगा -2 √5. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2 √5. ठीक है ना. दिस इज फॉर प्लस ना. ओके, इन द सेम वे इसका क्या करेंगे, ओके ये हो जाता था. और उसके बाद में दूसरा क्या है 1 अपॉन
ठीक है, डायरेक्ट ले लेते हैं इसको, ये बहुत लेंदी जा रहा है इसे भी। तो ये तो सिंपल टर्म से इतनी मुश्किल भी नहीं है कि इसको इतना रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट 1/a और 1/b को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सपोज थोड़ा मुश्किल सम रहता है ना तो उसके लिए वो मेथड परफेक्ट है, पर यहाँ पे सिंपल हमें 1/a और 1/b पूछा, और ये 1/a तो अपने पास में सिंपल ही है, तो इतना कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट वेरी इजीली बाय योर नॉर्मल वे। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √5, और ये बीच में प्लस का साइन है 1/2 माइनस √5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस ख़त्म काम। 2 प्लस √5 और ये नीचे आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला। और यू नो वेरी वेल a² माइनस √5 का होल स्क्वायर। ये नीचे ऊपर जाएगा और ये ऊपर बचेगा 4, और 2 + 2 4 रहता है, और ये 4 माइनस 5 दैट इज़ 4/-1 विच इज़ इक्वल टू -4। सो योर रिजल्ट विल बी द -4। ठीक है, तो सिंपल था। इसमें वो जो मैं बता रही थी शॉर्ट ट्रिक वगैरह इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट रेगुलर मेथड। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन नंबर दिस वन। फॉर x is greater than 0, the value of, एक्चुअली रिपीटेड है पर ठीक है, देख लेते हैं, कर लोगे आप लोग आराम से। द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो अभी इसकी मुझे वैल्यू निकालनी। ऑप्शंस आर गिवन टू यू, a x², b x², c x³, d x⁻², ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस आर गिवन टू यू। तो अभी वी हैव टू सॉल्व दिस वन। तो लेट अस सॉल्व। इसको एक y दे देते, इसको समझ लेते कि ये y है। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x, नाउ एंड सो ऑन। अगर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पहले प्रोसेस में क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने का मकसद क्या है अपना, कि हम लोगों को ये मिल जाना चाहिए, क्या, सॉल्यूशन। तो अभी यू कैन सी दैट कि नेक्स्ट स्टेप में अगर y इज इक्वल टू x, what is this? This is again, if I will do the square, इसका स्क्वायर निकल जाएगा। What I will get the result, y is equal to, this is all how, लेट मी थिंक अबाउट इट। चलो सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने अलग ढंग से दिया है। मैं इसको, ये x है और ये √x है, √x है, तो हमने तो इसको x पकड़ा हुआ है। अगर मैं स्क्वायरिंग करती हूँ पूरी तरह से, नहीं ये x प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, यू डू वन थिंग, सिंपल मेथड से जाते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लेट मी टेल यू कि प्रॉब्लम क्या हो रहा था। क्योंकि अगर स्क्वायरिंग मैं करती हूँ ना, तो यहाँ पे क्या होता है, y² और x², स्क्वायर रूट का क्या होगा, क्योंकि हमें तो स्क्वायरिंग होल साइड करा, तो हमारी यही टर्म स्क्वायर हो जाएगी। तो एक काम करेंगे, y/x कर देते हैं, और यहाँ पे रूट को ऐसे रखते हैं, x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x। अभी स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। चलो, ये कर दिया मैंने स्क्वायरिंग, ये भी कर दिया स्क्वायरिंग, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये ऊपर का स्क्वायर तो जाएगा, बट व्हाट आई विल रिमेन विथ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सी दिस एंड दिस टर्म टोटली मैचिंग और नॉट। ये देखो, ये पूरा का पूरा सेम है कि नहीं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसको तो मैंने y नाम दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, y/x² इज इक्वल टू y। तो अभी क्या होगा फिर, ये y² इज इक्वल टू yx², ये y का y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में y इज इक्वल टू x²। तो y तो अब मेरा क्वेश्चन ही है ना, ये पूरा, इसको मैंने y पकड़ा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, cy इज इक्वल टू x²।
यानी कि जो रिजल्ट है वो मेरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो सी बी ऑप्शन इज देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो क्या किया था मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अंडर 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 स्क्वायर रूट में एक्स है। आई वॉज सपोज कि मैं अगर स्क्वायरिंग इसी जहाँ पे कर देती हूँ, इफ़ आई विल डू द स्क्वायर इन दिस केस ओनली, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स का थोड़ा सा ऊपर का एक्स निकल जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, अगर स्क्वायरिंग किया तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पर मैंने क्या किया, एकदम फॉर द कन्वीनियंस पर्पस एक्स को नीचे बुला लिया और ये बचा मेरे पास स्क्वायर रूट में, क्योंकि जब व्हेन होल द टर्म आर इन द स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग करने में आसानी रहती है। तो अभी देखो मैंने y अपॉन एक्स आया, ये y अपॉन एक्स है और ये स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो इजीली स्क्वायर हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायरिंग करने पे जो अपना स्क्वायर रूट है वो निकल जाता है और ये अंदर की टर्म वैसे कैसी रहती है। और ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी मेरी ओरिजिनल क्वेश्चन आ गई है, तो उसको मैंने y पुट कर दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके y, तो y तो मेरा रिजल्ट ही है ना, क्वेश्चन ही है, तो इसका वैल्यू कितना आया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो मेरा ऑप्शन कितना आया, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, ओके। इफ एनी डाउट you can comment in a comment section. Again, if x plus root 3 is equal to square root of 7 plus 4 root 3, find the value of x, or you write the find x. Option A is equal to -2, B is equal to 2, C is equal to 4, D is equal to 4. ए नो आवाज नको। D is equal to 4. Now x plus what we will do, now I taught you that is square root of 7 plus 4 root 3. देखो 7 plus 4 रूट 3। स्टूडेंट्स पिछले बहुत वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है 7 प्लस 4 रूट 3। तो हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे हमेशा, इफ यू रिमेंबर इट वेरी वेल, 2 प्लस रूट 3 को जब हम लोग पूरा खोलेंगे तो आई विल गेट दिस टर्म। तो ये मैंने खोला, देखो ना, खोल के देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 7 और 2a भी आ जाएगी, 2 2 4 4 रूट 3। ठीक है, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत बार ये टर्म अपनी यूज़ हुई है। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 2 प्लस रूट 3, यानी कि ये कितना हुआ, 2 प्लस रूट 3। सो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 इज 2 प्लस रूट 3। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर द x। तो लेट अस कम टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू, नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 7 प्लस 4 रूट 3, इसका वैल्यू कितना है, ये है 2 प्लस रूट 3 एंड दिस इज x प्लस रूट 3। सो माई रूट 3 गेट कैंसल, आवर आंसर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। Isn't this simple one? So B is the option. क्या है NTSC, यही तो है, बस प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। आपको स्मार्ट मेथड करनी है, नए नए ट्रिक सीखने हैं, कोई चीज़ को कैसा भी देखो, आगे के क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि अरे हाँ कि कैसे। अभी तो ठीक है, ये टेक्सचुअल बेसिस के सम्स थे थोड़े से, कि आपके टेक्सचुअल में भी ऐसे सम्स मिल जाते हैं, बट कोई कोई सम्स होते हैं टेक्सचुअल्स होते हैं, पर उसको करने के लिए बहुत बड़ी लंबी मेथड यूज़ करनी पड़ती है। तो हम लोग को रियल वर्ल्ड में स्मार्ट बनना है, तो उस रियल वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए हमेशा हमें लेज़ी बनना पड़ेगा। यानी कि कैसे, कि हमें शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लेज़ी लोग क्या करते हैं, लेज़ी लोग वही करते हैं कि बाबा कैसे जल्दी से जल्दी काम खत्म हो जाए, या कैसे या हमारा ही काम। तो हमको यहाँ पे जो कंपटीशन एग्जाम्स है, इसके लिए हमें लेज़ी बनना पड़ेगा। लेज़ी बनने के लिए हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, यानी कि दोनों शब्द कॉन्ट्रोवर्सी, लेज़ी और स्मार्ट, बट हमें वो काम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, रूल। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ a इज इक्वल टू रूट 13 प्लस रूट 12 एंड b इज इक्वल टू रूट 14 प्लस रूट 11। अभी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग
is true. So your first option is A is greater than B. Second, B is greater than A. Third option is A is equal to B, and fourth one is A square is greater than B square. ठीक है, तो देखते हैं A कितना है मेरे पास में, √13 प्लस √12, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. √13 का स्क्वायर क्या 13, 12 का स्क्वायर क्या 12, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी 2√13 इंटू √12 कितना होता है 156. ठीक है, कम टू द B स्क्वायर. B इज √14, so it will be the 14 plus 11 plus 2, 11 4 is 44, 11 is 11 5 is 55, 154. Now you can see students how to guess कि दोनों में से बड़ा कौन सा है. ये देखो, ये भी 25, इसको ऐड करो, ये कितना आया 25 है, प्लस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 156, और B स्क्वायर कितना है, B स्क्वायर इज ऑल्सो 25 प्लस 2√154. अभी इसमें से तुम लोग देखो, ये तो सेम हो गया, इससे तो रिलेशन ख़त्म ही हो गया. अभी यहाँ पे देखो, 2 से भी ख़त्म कर दो. सपोज 156 बड़ा है, 154 बड़ा है. ऑफकोर्स A स्क्वायर ये जो है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो व्हाट रिलेशन आई एम गेटिंग, A स्क्वायर इज ग्रेटर देन B स्क्वायर. ठीक है, व्हाट A स्क्वायर इज ग्रेटर देन B स्क्वायर. और यू कैन सी दैट दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट, A भी बराबर है और ये भी बराबर है. सो बोथ द ऑप्शंस यू कैन. यहाँ पे कुछ से भी गड़बड़ है, आई डोंट नो अबाउट द ऑप्शंस बिकॉज इट इज मिसप्रिंट ओवर हियर. सो for the time being let us consider A square is greater than B square. This is a perfect answer. Okay, समझ में आ रहा है, all of you are getting. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन कोणता आहे आपला. हा, तर इथे आपण कसं जज केलं स्टुडंट्स, की ते पूर्ण मी सॉल्व करत बसले नाही आहे की A स्क्वेअर आहे तो पूर्ण √3 A स्क्वेअर और B स्क्वेअर. तर इथे आपण जज केलं की बाबा जर 13 + 12 25 आहे और 2√56 आहे, तर 25 सेम झालं, म्हणजे हे गेली पॉईंट. कारण इथे आपण ग्रेटर और स्मॉलर जज करू शकत नाही बिकॉज इथे इक्वल टू आलेला आहे. हा 2 पण जो आहे इथे पण मी जज करू शकत नाही. तर माझ्याकडे जे ऑप्शन राहतो की ज्याच्यावर मी जज करू शकते की A मोठा आहे का B मोठा आहे, व्हॉट इज द ऑप्शन विल बी देअर. तर इथे आय कॅन सी दॅट 156 ऑप्शन इज ग्रेटर दॅन द 154. So 1 A square is greater than B square. Come to the next one. Question number 5th. 9 9 9 8 1 3 into 9 9 9 8 1 5 plus 1. 9 9 9 8 1 4. Students, this question is asked in a 2018 NTSC. 18 नहीं 13 sorry. ये क्वेश्चन 2013 NTSC में पूछा गया है. ऑप्शंस आर A1, B2, C3 and fourth one is 4 options are there. अभी ऊपर क्वेश्चनला बघून तुम्हाला असं वाटणार की एवढं सगळं मल्टिप्लाय करायचं आणि कसं काय करणार आपण हे सगळं गोष्टी. तर अगेन आई टोल्ड यू लेज़ी मेथड. चलो लेज़ी बनते हैं क्योंकि इतना हमारे पास में इतना मेहनत करने के लिए टाइम नहीं है एंड वी आर अपेयरिंग फॉर द NTSC. तो NTSC बच्चों को लेज़ी बन के स्मार्ट बनना होगा. तो ये देखो, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. एम आई राइट? 3 4 5. तो मैं क्या करती हूँ, डिनोमिनेटर में इसको x पकड़ लेते हैं. सपोज दिस इज x, नीचे का ये x है. अभी ये इससे एक कम है क्या? नाही. 14 आहे, ही 13 आहे. जर ही x आहे तर ही x मायनस होणार का नाही? कारण तुम्ही 14 - 1 केला, हा 14 आहे तर हा 14 - 1, कारण माझा x 14 आहे.
14 मायनस 1 झाला आहे. हा काय 14 प्लस 1 होणार का नाही. 14 प्लस 1 म्हणजे x प्लस 1 आणि पुढे हा प्लस तर आहेच तुमच्याकडे. a मायनस बी ए प्लस बीचा काय रूल आहे. एक्स स्क्वेअर मायनस 1 ए मायनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर 1 स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन एक्स. गेला गेला. समजलं. एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स. आवर रिझल्ट इज एक्स. ठीक आहे. नाही, इट इज अ स्क्वेअर. सॉरी, वन मिस्टेक आय डिड. दिस इज स्क्वेअर. So it will be the square. It will be the square. Square. So get cancelled and hence your option is 1. So which option is right? Your first option is right. क्या किया? What we have done? जज केलं क्वेश्चनला की अरे यांच्यामध्ये तर हा 13 आहे, हा 14 आहे, 15 आहे, वरचे 3 नंबर सेमच आहे, 4 नंबर सेम आहे, 9998 तर सेम आहे. सो वी विल थिंक अबाउट द 13, 14, 15. तर एक लिंक अशी बसवूया की जे काय याच्यामध्ये रिलेशन तयार करेल. तर जर मी याला एक्स पकडते आणि हा स्क्वेअर आहे तर स्क्वेअरची टर्म कधी पण सिम्पल घ्यायचा प्रयत्न करायचा. तर एक्स याला घेतलं मी एक्स स्क्वेअर तर हा एक्सपेक्षा एकनी कमी आहे. सो आय हॅव रिटन एक्स मायनस 1. ही एक्सपेक्षा एकनी जास्त आहे लिहिलं आणि प्लस 1. अब इसको सॉल्व किया तो ए मायनस बी ए प्लस बीचा फॉर्म्युला काय असतो. एक्स स्क्वेअर मायनस 1 स्क्वेअर आणि हा प्लस 1 आहे. तर हा 1 1 कॅन्सल झाला. एक्स स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअर कॅन्सल झाला. रिझल्ट 1. बघा विदिन अ फ्यू सेकंड्स वी कॅन गेट द आन्सर बाय द स्मार्ट वे. वन मोर क्वेश्चन. अजून 2-3 सम्स केले. येस, ओनली 2 सम्स आर रिमेनिंग. देन वी विल. इफ x is a perfect square. X is a perfect square. Then the next हे पण प्रश्न विचारलेला आहे NTSC में. Then the next perfect square is number 1 x plus 1 x square plus 1 x square plus x 2x plus 1 and fourth option is x plus 2 root x plus 1. ठीक है, चला क्वेश्चन समझूंगे भैया. सॉल्यूशन. What they are saying, x is a perfect square. x is means equal to is a perfect square. तर suppose a square पकडून टाकूया. x is a perfect square. Then they are asking then the next. next मतलब कि आगे का एक के नेक्स्ट क्या रहेगा 2, 3 है, 3 के नेक्स्ट 4 है, 4 के नेक्स्ट 5 है. तो x का नेक्स्ट क्या रहने वाला है x plus 1. and it will be the, यहाँ से a का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे. a will be the root x. ठीक है. so next will be the a plus 1 and it will be the root x plus, wait a minute. so if x is स्क्वायर है तो लेट अस टेक आउट द स्क्वायर रूट. ये a ले लेंगे. सो इट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x. a स्क्वायर इज इक्वल टू x. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड a इज इक्वल टू रूट x. नाउ टेक, उन्होंने नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर पूछा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा हमें. तो पहले तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं. नेक्स्ट नंबर मतलब कि उसमें हमें एक ऐड करना पड़ेगा. तो इसमें मैंने एक नंबर ऐड कर दिया. नेक्स्ट सी दे आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर. तो पहले नेक्स्ट नंबर लेंगे तभी उसका परफेक्ट स्क्वायर कर पाएंगे. x हो गया और ये हुआ रूट x प्लस 1. तो अभी स्क्वायरिंग कर दो. a प्लस 1 द होल स्क्वायर. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा
root x plus 1 the whole square. So it will be root x square means x plus 2ab plus b square. सो पहले नंबर जब मेरा a स्क्वायर था तो उसका नेक्स्ट नंबर a प्लस 1 होल स्क्वायर है. तो आगे का नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना है? अपना क्वेश्चन क्या था? ये था ना x इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो इसका दूसरा कौन सा रहेगा? x के बाद का दूसरा नंबर क्या रहेगा? परफेक्ट स्क्वायर इज x प्लस 2 रूट x प्लस 1. सो योर थर्ड ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर. सॉरी, फोर्थ ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर. x plus 2 root x plus 1. So in this way you have to do this one. Now come to the last question of today. Find the value of 1 plus 2008 1 plus 2009 1 plus 2010 into थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा लेट स्मॉल ज़रा सा. So this is a lengthy sum. तो करते हैं इसको. See students, we will start from the lowest term. We will start from here. यहाँ से start करते हैं. Let us solve this part. This part. तो you can see that this is 10, 11, 13. अगर 2010 को मैं x पकड़ लेती हूँ तो 2011 क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा और ये 2013 x प्लस 2 हो जाएगा. तो देखो यहाँ से लेते हैं square root of this part. I am taking this part, this total part. 1 plus x square root of 1 plus x square root of 1 plus x plus 1 x plus 3. Are you getting student? See, अगर 2010 x है तो 2011 कितना हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा. और 2013 कितना हो जाएगा? x प्लस 3 होगा क्या? नहीं होगा. तो ये आया मेरे पास में. इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख लेते हैं. 1 प्लस एक्स, लेट अस सॉल्व दिस वन. 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x 4x प्लस 3. नाउ 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x plus 4, and I will get the result 1 plus x square root of x plus 2 the whole square. ये गया और ये गया. बचा कितना अपने पास में? 1 plus x and x plus 2. Students, are you getting? So this is all the result of this one. ये इसका रिजल्ट आ गया. अभी बाहर फिर से 2009 है तो कैसे करेंगे? बाहर है 2009. तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अगेन इन द स्क्वायर रूट. अभी क्या करते हैं इसको? ये अपना आया 1 प्लस और बाहर है 2009. अगेन इट इज़ इन ए स्क्वायर रूट. तो फर्स्ट यू लेट अस सॉल्व दिस वन. इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ओपन इट, यू विल गेट
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। सो गया और ये बचा मेरे पास में सिर्फ एक्स प्लस वन। बाहर में यू कैन सी दैट इट इज़, इस पूरे की वैल्यू मेरी एक्स प्लस वन आई, पर आगे फिर से वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस यू हैव लाइक दिस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस 2009 और इसका रिजल्ट मेरे पास आया था x प्लस वन। बराबर है ना, 2009 के ऊपर से ये पूरा का पूरा जा रहा है अपना स्क्वायर रूट। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इफ 2009 दिस इज 2009, हम लोगों ने x को क्या पकड़ा था, x को हम लोगों ने 2010 पकड़ा था, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 2009 कितना हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस दिस इज 2010 प्लस वन 2011। बराबर है, तो ये x है तो ये x माइनस वन होगा क्या, नहीं x प्लस वन। सो इट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड दिस प्लस वन। गया अगेन यू हैव एक्स स्क्वायर, ये गया x। ये कहाँ तक का सॉल्व किया हम लोगों ने बेटा, बड़े भला बड़ा सम है पर इसके जो ऑप्शन, तो ये यानी ये पूरे का रिजल्ट जो आया है मेरे पास में, ये देखो ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो है ना यहाँ से चालू किया, तो इसका पूरे का वैल्यू कितना आया, x आया है। तो अभी मेरे पास में सिर्फ ये पार्ट बाकी है सॉल्व करने का, तो अभी कितना आ जाएगा ये सी है स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस 2008 एंड दिस रिजल्ट इज x। Now tell me students, 1 plus 2008 यानी ये तो x है, बराबर है, x है यानी 2010 है और ये 2000 से 2 कम है, तो यानी ये x माइनस टू होगा और ये x है। लेट अस ओपन इट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगेन इट विल बी द x माइनस वन द होल स्क्वायर। ये गया। सो योर रिजल्ट इज x माइनस वन। अभी x को मैंने क्या पकड़ा था 2010, 2001 में से 10 में से एक साल माइनस कर दो तो योर आंसर विल बी द 2009। सो योर ऑप्शन इज नॉट गिवन टू यू, सो ऑप्शंस आर हियर, नंबर 1 A 2008, B 2009, C 2010, D 2013. So 2009 is your correct option, and in this way this video lecture is finished and your number system is also finished. So you do practice. Let me tell you this one more. So see what I have done, पूरा x के फॉर्म में लिया है। ये था x 1 प्लस एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, x 1 प्लस एक्स प्लस वन, इसको सॉल्व किया, x ये आया, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो वो लोग सम्स भी ऐसे ही डालते हैं कि बाबा वो सॉल्व होने भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सम सॉल्व नहीं होने वाले, उसमें कुछ ना कुछ टेक्निक रहती है। तो अब बोलते हैं ना कि हमें रियल वर्ल्ड में कैसे स्मार्ट बनना है, तो यही है मेथड्स कि हमें कैसा भी इसको आप लोग सॉल्व करते बैठे तो 1 प्लस 2000 इस दिमाग में भी नहीं आने वाले कि क्या करने में, पर एक्स के रूल से हम लोगों ने थोड़े से प्रैक्टिस की और थोड़ी, तो यू विल बी द वेरी फ्लुएंट फॉर दिस वन। तो यहाँ पे मैंने इसको x पकड़ा 1 प्लस, तो ये निकाला तो इसका स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो फिर इसका स्क्वायर निकल गया, तो ये टिम्पल आ गई। फिर से आगे से इसको खोला तो फिर से स्क्वायर रूट निकल गया इसके, फिर आगे का वो 2009 वो उसमें ऐड कर दिया। अभी 2010 को अगर हमने x माना है तो 2009 उससे एक कम होगा यानी x माइनस में, फिर इसको सॉल्व किया तो फिर से इसका स्क्वायर रूट आया, ये x आ गया। अभी मेरे पास में फिर से आगे का सम हमने एक्सपांड किया तो वहाँ पे 1 प्लस 2008x था। अभी जब x 2008 है, x जो ये है ये 2010 है, तो उससे 2 कम हुआ तो x माइनस टू ही होगा ना, तो ये x माइनस टू आए तो इसको सॉल्व किया तो फिर से x माइनस वन का होल स्क्वायर है, यानी कि मेरा ये लास्ट का ऑप्शन जो होता है वो बचता है वो x माइनस वन है। तो x तो मेरा 2010 है और ये 9, सो माई करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, लेट मी नो हाउ यू आर टेकिंग दिस लेक्चर्स। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस इतना क्लैरिटी नहीं होगा, इतना अच्छे से नहीं आया होगा, बट स्टिल ट्राई टू डू, क्योंकि हमको थोडा तो भी स्मॉल बेसिस से तो भी आपको चालू करना चाहिए. थोडं करूनच माणूस शिकताय. तर तुम्ही पण तुमची NTSC चालू करा आणि नक्कीच तुम्ही द्यायचा प्रयत्न करा. ओके, बाय, टेक केअर.